Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to TCS latest new hiring that is on the 14th May 2023 and it is for 2024 to 2018 batch. So in this video we will discuss about top most important queries. बहुत सारी क्वीरीज आई मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में भी. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट ऑल द क्वीरीज एंड ये वीडियो के बाद आपकी सारी क्वीरीज सॉल्व होने वाली है. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वीरीज दैट इज रिलेटेड टू हायरिंग, बट इफ यू स्टिल नॉट अप्लाइड फॉर द हायरिंग यू कैन चेक द लेटेस्ट वीडियो ऑन आवर चैनल एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर द हायरिंग. ओके, सो बेसिकली देयर इज अ क्वीरी दैट कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं, आप सभी के मुझे काफी डाउट आए थे कि देयर इज नो ऑनलाइन एग्जाम, व्हाट इज the actual meaning. So one of the most important point, examination is there. Okay, like you have to check step 1 that you have to apply to TCS NQT and appear for the test, but the mode of examination is changed. Okay, like what are the different mode of assessment available? So the TCS NQT will conducted only in center mode at TCS Ion authorized center. Okay, so basically they just mentioned that you have to give the TCS NQT examination at the center. There is no online examination, right? But actual meaning is the exam mode is changed to in center. And आप अगर इसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको TCS Ion सेंटर पे जाना पड़ेगा. TCS Ion के जो ऑथराइज्ड सेंटर होते हैं पैन इंडिया, ओके, आपकी सिटी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा. So the second query is what about the different test and how to choose? Like I am from business background, so how to choose? I am from IT background, so how to choose? So basically there are three type of TCS NQT pack. First is cognitive, second is IT, and third is BFSI. If you want entry level jobs, if you are experienced also if you want jobs in IT and non-IT roles, so you have to select cognitive. But according to the coding examination, but according to the coding related jobs or IT related jobs, you have to select cognitive and IT. Okay, if you want non-tech, so only you have to select cognitive. And if you want jobs in bank and if you want jobs that is related to financial roles and job salary range from 2.5 LPA to 11 LPA, you can apply for the BFSI only. Okay, don't buy the 3 pack. ओके, इफ यू आर फ्रॉम, जैसे मैं आपको यहां पर और बता देता हूं, मान लीजिए इफ यू आर फ्रॉम BE BTech ME MTech एंड इफ यू वांट कोडिंग रिलेटेड जॉब्स, मतलब IT में आपको जॉब चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड, सो यू हैव टू बाय कॉग्निटिव एज वेल एज प्लस IT. ओके, क्योंकि आपका ये स्कोर कार्ड आएगा, उसके बेसिस पे आप मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई फॉर द मल्टीपल MNCs. बट इफ यू आर फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, ओके, एंड इफ यू वांट जॉब्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल रोल, सो यू हैव टू ओनली सिलेक्ट द BFSI pack. Okay, because in the BFSI pack they will check your knowledge of financial market services, basic aptitude along with psychometric assessment. Okay, so this is the next query. So what about the exam preparation and syllabus? If you want a specific video that is related to examination syllabus, you can mention in the comment section, as well as there is already one video on our channel that is related to pattern. Okay, basically in the aptitude and in the programming they ask the same syllabus that is related. So what type of question will ask and what about the resources, how to crack TCS NQT examination easily. So you can also check the TCS NQT examination books, what about the syllabus and all the details that is related in this video. Okay, so this is the important query. And what about the TCS Ninja or digital hiring? It is for the 23 or 2020 batch, because यहाँ पर 7 LPA एंड 3.6 LPA 3.5 LPA की हायरिंग होती है निंजा रोल के लिए एंड डिजिटल रोल के लिए. तो क्या ये हायरिंग इससे होगी इफ यू स्कोर वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द TCS टीम. अगर TCS टीम आपका स्कोर जो है उसको कंसिडर करते हैं
तो डेफिनेटली आपको कॉल आ जाएगा। बट अभी तक जहां तक देखा गया है, अभी तक इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डिफरेंट एमएनसीज के कॉल आ जाते हैं। ओके, डिफरेंट एमएनसीज में, दूसरी मल्टीपल कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम करवाते हैं, वो फ्री एनक्यूटी, जो कि बिल्कुल फ्री रहती है। उसमें एप्टीट्यूड कोडिंग पूछा जाता है। सो इफ यू आर फ्रॉम 2023 टू 2020 बैच, ओके, सो बेसिकली मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आपके 60% का क्राइटेरिया है आपके पास 10th 12th में, तो आप रुक सकते हैं एनक्यूटी एग्जामिनेशन के लिए, फ्री एनक्यूटी। और अगर इससे लेस है क्राइटेरिया, तो डेफिनेटली आप टीसीएस एनक्यूटी दे सकते हैं। उससे ये फायदा है कि आपको मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेन एग्जाम में 60% का क्राइटेरिया रहता है। हाउ टू एक्टिवेट एनक्यूटी पैक। सो बेसिकली मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूं कि एनक्यूटी पैक को आप कैसे यहां पर एक्टिवेट करेंगे। सो यू हैव टू चेक दिस प्रोसेस like when the application who can apply for the TCS. okay, so basically यहाँ पर TCS NQT पैक को आपको कैसे यहाँ पर अपडेट करना है। यहाँ पर पूरी प्रोसेस दे रखी है कि जैसे मान लीजिए आपने प्रीवियसली अपीयर्ड करा, मतलब TCS कॉग्निटिव में आपने अप्लाई किया, और अगर आपको इंप्रूव करना है आपका स्कोर, तो भी आप यहाँ पर सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूं, यहाँ पर सारे पैक की डिटेल्स दे रखी है। ओके, सो बेसिकली आपको उस पे यहाँ पर आपको वो सारी लिंक्स पे जाना है और उसमें आपको अप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हाउ टू, हाँ ओके, सो दिस इज पॉइंट, हाउ डू आई अप्लाई फॉर टीसीएस एनक्यूटी। आपको सबसे पहले बाय नाउ करना है और एक्टिवेट नाउ करना है टीसीएस एनक्यूटी वेरिएंट सेक्शन में। आप नए यूजर हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के लिए एक पॉपअप विंडो शो होगी, लाइसेंस कोड आपको एक्टिवेट करना है। मान लो अगर आपको लाइसेंस कोड मेल पे आ जाता है तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो आपने जैसे ही आप परचेस कर लेंगे सक्सेसफुली, तो आपको मेल आ जाएगा फाइनल, और आपको हॉल टिकट का भी मेल आ जाएगा। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने टीसीएस एनक्यूटी टीम ने बता रखी है, तो आप इसमें जाके डिटेल्स देख सकते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि क्या नेक्स्ट स्टेप्स होगी एग्जाम के बाद। तो नेक्स्ट स्टेप्स यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप। कोई भी कट ऑफ है क्या? कोई भी कट ऑफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि टीसीएस एनक्यूटी स्कोर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली आप टीसीएस के करियर्स पोर्टल पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक जॉब्स का सेक्शन दिखेगा, उस सेक्शन में जाके आप फिल्टर लगा के सारी अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट, लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।